وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ آواز تھوڑی جی کھولے آجے، تھوڑی جی۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھ سے، بٹ ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود میں کیا تھوڑی جی کھول دیو تو کٹ کر دیتی ہے۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ نبی آتے رہے لیکن آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں اللہ کا آخری لے کر پیغام آئے۔ جھکانے آئے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں ایک اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں اللہ کے بعد جہاں دیکھو مدینے والے کا نام آئے۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کے خالق و مالک ہیں۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے رسول نے۔ ساتھی جو آگے تشریف فرما ہیں وہ سٹیج کے قریب آ جائیں، پیچھے ساتھی مزید آ رہے ہیں۔ ساتھی گزارش ہے کہ سٹیج کے قریب آ کر بیٹھیں۔ ساتھی برائے مہربانی اٹھ کر آگے آگے آ جائیں، قریب ہو جائیں، تاکہ پیچھے سے آنے والے ساتھیوں کو مزید جو ہے ان کے لیے وسعت پیدا ہو اور وہ آسانی سے بیٹھ سکیں۔ تھوڑی آواز کھولے دی۔ برائے مہربانی ساتھی مزید آگے آ جائیں، مزید آگے آ جائیں۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی رب العالمین کے لیے درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس اللہ کے محبوب نے بے شمار مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ میرے بعد عظیم مذہبی سکالر قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب تفصیلی خطابات فرمائیں گے۔ حضرات مقام مصطفیٰ کو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ رب العالمین نے اس کائنات میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبی قائد بن کے آئے، لیکن آقا انعامدار سے پہلے
कायनात में जो पैगंबर आए, कोई बस्ती का कायद बन के आया, कोई इलाके का कायद बन के आया, कोई कौमे आद का कायद बन के आया, कोई कौमे समूद का कायद बन के आया, लेकिन जब आमना के लाल आए वो कायनात में किसी बस्ती के कायद बन के नहीं आए, इलाके के कायद बन के नहीं आए, कौम के कायद बन के नहीं आए। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं अल्लाह की सारी मखलूक की तरफ रब्बुल आलमीन का रसूल बन के आया हूँ। हदीस पाक में आता है वकान नबिय्यु युबासु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इला नास आमा, पहले नबी इलाकों की तरफ आए, कौमों की तरफ आए, मैं मोहम्मद कायनात की तरफ आया हूँ। आप कब आए, हालात क्या थे, कुफर की जुल्मतें थी, शिरक की निजास्तें थी, किरदार की गलास्तें थी, लोग खालिक का दरवाजा छोड़ चुके थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, शराब पी रहे थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे, जिंदा जानवरों का गोश्त काट के खा रहे थे। आका आए, हालात का नक्शा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यूं खींचा, फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। फरमाया जहन्नम के किनारे थे, खून के प्यासे थे, फिर हुआ क्या, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, महबूब रब्बुल आलमीन आए, तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाया, व युज़क्कीहिम, लोगों के दिल बदल गए, पाक हो गए। हाली रहमतुल्लाह अलैह बोले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हीरा से सोए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का, दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे रा को बख्शा, फरोगे वादिये सीना, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। ये आका आए हैं, अल्लाह ने क्या मकाम उनको कायनात में अता किया है। हजरात कुरान की फिर चंद आयात का सहारा लूंगा, जो वो शाद जो रब्बुल आलमीन ने पैगाम मुस्तफ़ा पे आगे चल के बात करूंगा। जब मकाम मुस्तफ़ा समझ आएगा फिर पैगाम मुस्तफ़ा समझ आएगा। मकाम क्या लेके आए, शान क्या लेके आए, बुलंदियां क्या लेके आए। खालिक फरमा रहे हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने महबूब को कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। खालिक फरमा रहे हैं वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, महबूब कायनात के लिए बशीर बन के आए, नज़ीर बन के आए। खालिक फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे नबी आप शाहिद हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप नज़ीर हैं, आप दाइये इलल्लाह हैं, आप सिराज मुनीर हैं। मकाम क्या लेके आए, जो पहले नबी आए वो नबी रसूल बन के आए, आका आए, नबूवत का ताज पहन के आए, रिसालत का ताज पहन के आए, साथ खत्म नबूवत का ताज पहन के आए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आका खातमुन नबिय्यीन बन के आए। इन रिसाला वन नबुव्वा कदिन कदद फला रसूल बादी वला नबिया, नबुव्वत और रिसालत को अल्लाह ने मुनक़ते कर दिया। अब जिब्राइल के जमीन पे फेरे नहीं लगेंगे, आसमान से वही नहीं आएगी। हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब खत्मे नबुव्वत में बात करते थे एक मिसाल दिया करते थे। लोगों ट्रेन जब रावलपिंडी के स्टेशन से चल पड़ती है, रास्ते में लाला मूसा खानिया गुजरात सक्खर रोड़ी हैदराबाद, ट्रेन की आखिरी ब्रेक कराची है, कराची
से आगे पानी और समंदर है, अगर ड्राइवर ट्रेन को कराची से आगे चलाएगा वो पानी में गिर जाएगी। ऐसे ही मेरे रब ने नबुव्वत वाली गाड़ी जिसे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चलाया, आमना के लाल पे ब्रेक लगा दी, जो कराची से आगे ट्रेन चलेगी वो पानी में गिर जाएगी। जो आमना के लाल से आगे नबुव्वत और रिसालत चलाएगा वो काफिर और मुर्तद हो के जहन्नम में गिर जाएगा। इतना बुलंद मकाम रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में अता किया। मालिक फरमा रहे हैं वरफाना लका जिक्र, महबूब खालिक ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तौरात में मेरा जिक्र होगा, महबूब तेरा जिक्र होगा। इंजील में मेरा जिक्र होगा, महबूब तेरा जिक्र होगा। कुरान के पारों में मेरी तौहीद होगी, तेरी रिसालत होगी। एक गाने वाला अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला के पास आया, अम्मी जान आका का अखलाक क्या है? पूछने वाले कान खुलुक हुल कुरान, रब का सारा कुरान मदीने वाले का अखलाक है। मैं क्यों ना कहूं कुरान हिदायत है, आप हादी हैं, कुरान रहमत है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। कुरान किताब की सूरत में रब का कलाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अमली शक्ल है। आपकी नबूवत की बात आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तज़किरा कुरान बना दिया। आपके होंठों की बात आई, ला तुहर्रक कह के तज़किरा कुरान बना दिया। आपके हाथों की बात आई, वमा रमैता इज़ रमैता कह के तज़किरा कुरान बना दिया। आपके सीने की बात आई, अलम नशरा कह के तज़किरा कुरान बना दिया। आपकी यतीमी की बात आई, अलम यजिद का यतीमन फावा कह के तज़किरा कुरान बना दिया। आप बदर में गए, तज़किरा कुरान बना दिया। आप उहद में गए, आवाज खोल दे थोड़ी जी, आप उहद में गए, तज़किरा कुरान बना दिया। आप गार में गए, तज़किरा कुरान बना दिया। अल्लाह ने मकाम क्या दिया है? आज सियालकोट के किसी जिम्मेदार नवाब के डेरे पे एमपीए एमएनए की गाड़ी किसी गरीब के दरवाजे पे आ जाए, एड़ी जमीन पे नहीं लगती। यारो उस हस्ती का क्या मकाम है जिसके दर अक़दस पे जिब्राईल अमीन बुराक लेके आए, बुराक पे सवार किया गया। अब सफर का आगाज है। सुबहानल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। खालिक अपने महबूब को ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सैयदुल कौनैन को मस्जिद अक्सा में पहुंचाया गया। वहां पे अंबिया मौजूद हैं, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, खलीलुल्लाह मौजूद हैं, ज़बीहुल्लाह मौजूद हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ाने की बारी आई, सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन आगे बढ़े, सैयदुल कौनैन का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आका आप इमाम होंगे, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, खलीलुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, रूहुल्लाह मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, मूसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, याकूब अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, हारून अलैहिस्सलाम मुक्तदी होंगे, आप इमाम होंगे, अंबिया मुक्तदी होंगे। और जितने होवे मुहम्मद ए हो ही नहीं सकता, कोई अगे खलोवे हो ही नहीं सकता। इतना मकाम अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को कायनात में अता किया है। जे कोई नारा तकबीर ला के मैनू सां कढ़ाई रखोगे मैं थकांगा नहीं जल्दी। अल्लाह अकबर। मैं इतना मकाम अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को कायनात में अता किया। वरफाना लका जिक्र, महबूब तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अजान में मेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र होगा, तकबीर में मेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र होगा, कलमे में मेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र होगा, तशहुद में मेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र होगा, कुरान के पारों में मेरा जिक्र होगा, तेरा जिक्र होगा। बंदा मर के कब्र में जाएगा, पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा। बंदा समझ गया है कि खतीब पुरजोश है तो इन्हों सां कढ़ाना पैना है। मैंने
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मकाम अल्लाह ने सैयदुल कौनैन को अता किया। आज अजमत मुस्तफ़ा के डंके अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी खिताबत को दुनिया ने माना और जिनकी खिताबत के दुनिया में डंके बजे। ऐ सियालकोट के वासियों, आप खुश नसीब हैं। सियालकोट की धरती से रब ने दो अलामा पैदा किए। एक अलामा इकबाल है, एक अलामा एहसान है। इकबाल जिन बोरे सैयदुल कौनैन के बारे में हर इब्तदा से पहले, ये भी एक सियालकोट के अलामा हैं जिनको दुनिया अलामा इकबाल कहती। हर इब्तदा से पहले जो शुरू के अंदर शेर पड़ा वो भी अलामा इकबाल का था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर। ईमान तेरा टूट गया राहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बोले, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते इला के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरात, अब सियालकोट की धरती से पैदा होने वाले अल्लाह अकबर अल्लामा एहसान ज़हीर बोले, चन्योट की सरजमीन थी, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, आलम इस्लाम के अजीम खतीब खत्म नबूवत के मौजू पे खिताब कर रहे थे। और सुनो अहले सियालकोट, ये भी तुम्हें मुबारकबाद दे दूं, अगर रूए जमीन पे, आसमान की छत के नीचे, जमीन की पुष्ट पर रद्दे कादियानियत पे सबसे बड़ी दुनिया में कोई किताब है, वो अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह की रद्दे कादियानियत। बारिश के कतरे बरस रहे थे, लोगों ने उठना शुरू किया। शहीद मिल्लत ने ऐलान किया, जो बारिश के कतरों से भागने वाला है वो यहीं से पलट जाए। मेरे साथ वो चले जो फातिमा के अब्बू की नमूस के लिए अपने कुर्तों को खून से रंगीन करवाने का जज्बा रखता हो। हाँ, आज मैं इन दो अलामा के शहर में शान मुस्तफ़ा, पैगाम मुस्तफ़ा पे बात करना चाहता हूँ कि इस आका की अजमत पे मैं बात करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जिनको रब ने इतना मकाम दिया। आका ने फरमाया, दुनिया वालों, मैं मोहम्मद उस पत्थर को भी जानता हूं, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। मैं किस आका की अजमत पे फूल बखेरना चाहता हूं, जिसने उंगली उठाई रब ने चांद टुकड़े कर दिया, चेहरा उठा के दुआ की रब ने किबला बदल दिया, दरख्त को इशारा किया अपनी जगह से उखड़ के आ गया, प्याले पे उंगलियां रख दी रब ने पानी जारी कर दिया, उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेर दिए, खालिक ने तंदूस से भर दिए। और जिनके बारे में किसी ने कहा माएं जनतियां से बच्चे खाल खाल, कोई बोला एक आदमी ने अरब का बोल बाला कर दिया, एक हिंदू बोला बचश्मे ज़िया अज जमाल मोहम्मद बकलबम गिना अज ख्याल मोहम्मद मिसाल मोहम्मद जोई जोई नयाबी नयाबी मिसाल मोहम्मद। लोगों कायनात ढूंढ लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कायनात में नजर नहीं आएगा। हाँ, खालिक ने मकाम इतना दिया। अबू ज़र गफ़ारी आए रज़ी अल्लाह ताला, आका आपने अपनी नबूवत को कैसे पहचाना? अबू ज़र में मक्के में था, खालिक ने आसमान से दो फरिश्ते भेजे, एक जमीन पे आ गया, दूसरा दरमियान में ठहर गया। जमीन पे आने वाला पूछता है, क्या यही मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दरूद की छल पड़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ यही आका है। फिर क्या हुआ? तराजू लग गया, 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, 100 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला, 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। एक फरिश्ते ने बोल के दूसरे को कहा, अगर एक पल्ले में खालिक की सारी मखलूक बिठा दी जाए, मखलूक में अंबिया भी है, मखलूक में औलिया भी है, मखलूक में अतकिया भी है, मखलूक में सुलहा भी है, मखलूक में शोहदा भी है, एक पलड़े में अंबिया हूँ, औलिया हूँ, अतकिया हूँ, शुहदा हूँ, सुलहा हूँ, दूसरे पल्ले में अकेला आमना का लाल हो, आमना के लाल वाला पलड़ा झुक जाए।
रब्बुल आलमीन ने इतना बुलंद मकाम सैयदुल कौनैन को कायनात में अता किया। आप खातमुन नबिय्यीन बन के आए, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। अरे जिनकी नबूवत और सदाकत की गवाही अल्लाह अकबर कंकरियों ने बोल बोल के दी, वो आका कायनात में आए। अल्लाह अकबर उम्मत का दर्द लेके आए, उम्मत का प्यार लेके आए, कुफर की जुल्मतों को मिटाने आए, इस्लाम का परचम कायनात में लहराने आए। जिनके दिल में उम्मत का इतना प्यार था, सही मुस्लिम में हदीस पाक है, एक दफा आका ने उम्मत की बख्शिश के लिए इतनी दुआएं की, सैयदुल कौनैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। खालिक के कायनात ने जिब्राइल अमीन को भेजा, मेरे महबूब के पास जाके पूछ क्यों रोते हो। सैयदुल मलाइका आ रहे हैं, खालिक भेज रहे हैं, आके अर्ज करते हैं आका अल्लाह ने भेजा है, रब्बुल इज्जत ने, आप क्यों रो रहे हो। उम्मत के दर्द में रो रहा हूं, कलमा पढ़ के जहन्नम की आग में न जल जाए। जाके खालिक को बताया, मौला तेरा महबूब तो उम्मत के दर्द में आंसू बहा रहा है। खालिक क्या फरमाते हैं, जिब्राइल अजय अभी जमीन पे जाओ, मेरे महबूब के पास मेरा पैगाम ले जाओ। या जिब्रीलो इज़हब इला मुहम्मदिन फकुल इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए उम्मत के दर्द में रोने वाले मेरे लाडले रसूल, रोते क्यों हो। क़यामत तो होने दे, तेरा रब राजी करेगा, नाराज नहीं करेगा। लोगों फिर आका का फरमान है, जब क़यामत का दिन होगा हर नबी के लिए दुनिया में स्पेशल दुआ होती है। हर नबी रसूल ने दुनिया में मांग ली, मैंने वो अपनी दुआ क़यामत के दिन उम्मत की शफाअत के लिए बचा ली। आज दुआ काम आ रही है, लोग पसीने में डूबे होंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, बाबा जी अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, हम सब कबाब बनाया, सिफारिश कर दो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तुलहा, हिम्मत नहीं तुम्हारी सिफारिश के लिए जाऊं। मौला ने पूछ लिया, दरख्त के करीब जाने से मना किया था, गए क्यों थे। नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे तुम्हारी सिफारिश के लिए जाऊं। अल्लाह ने पूछ लिया, बेटे के लिए दुआ से मना किया था, दुआ क्यों की थी। हर नबी रसूल जवाब दे देंगे, आका के पास आएंगे, आका क्या फरमाएंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, उम्मत की सिफारिश करूंगा, सीने से लगाऊंगा। आप उठेंगे, खालिक की बारगाह में अपनी पिशानी को झुका देंगे, मालिक के कायनात की अजमत और बड़ाइयों किबरियाई बयान करेंगे। कायनात का रब फरमाएगा, इरफा रासक, महबूब सर तो उठाइए, सल तूता, मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है ये नहीं। तू तो मुख्तार कुल है, बंदा परवर है, गरीब नवाज है, जोलियां भरने वाला है, खोटी किस्मत खरी करने वाला है। नहीं, मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। रब्बे उम्मती रब्बा उम्मत को माफ कर दे, उम्मत को माफ कर दे। जिस आका के दिल में उम्मत का इतना प्यार था, सुनो, जब तक उम्मती भी माँ से, बाप से, खानदान से, कायनात से, जिस्मो जान से, कुल जहान से बढ़ के आका से प्यार न करे, मुसलमान नहीं हो सकता। आओ मोहब्बत व अकीदत का ये आलम, मैं तुम्हें कोई आए कोई जाए, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं मक्का में चौक में लेके चलूँ, एक कैदी है जिसका नाम खुबैब है रजी अल्लाह ताला, मक्का के चौक में लाया गया, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार, जिस्म का गोश्त कट के मक्का की जमीन पे गिर रहा है। काफिर कहते हैं तुझे छोड़ देंगे, इतने अल्फाज कह दे, काश मेरी जगह सूली पे अल्लाह के रसूल होते। इतना कहना दूर की बात है, मैं तो इतना भी गवारा नहीं करता मेरी जिंदगी में सैयदुल कौनैन के पांव में कायनात में कांटा लग जाए। खब्बाब को अंगारों पे लिटाया गया, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, खुबैब को सूली पे लटकाया गया, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, सैयदुल कौनैन की मोहब्बत में उनके हाथ कटे, सैयदुल कौनैन की मोहब्बत में अंगारों पे लेटे, आका की मोहब्बत में सूलियों पे लटके, आका की मोहब्बत में बाजू कट गए, आका की मोहब्बत में टांगे तोड़ दी गई, आका की मोहब्बत में आंखें निकाल दी गई, आका की मोहब्बत में जिगर चबा लिए गए, लेकिन वो बावफा थे, हर मकाम पे वफा करते रहे। मैं उनकी वफा का किस अंदाज से तज़किरा करूं। जंगे उहद है, ज़ियाद बिन सकन है रज़ी अल्लाह ताला, हाथ में तलवार है, सैयदुल कौनैन की चौखट का पैरा दे रहे, काफिर वार करते हैं, ये 72 जख्म खा के लहू लहू होके जमीन पे गिरे। जब गिरे, अली और तलहा आए, इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, रास्ते में होश आ गया, अली और तलहा ज़ियाद को कहां लेके जा रहे हो, 72 जख्म है, तेरा जिस्म खून से रंगीन है, तुझे इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हें अल्लाह
अल्लाह का वास्ता देता हूँ मुझे इलाज के लिए लेके न जाओ। मैंने सैयदुल कुनैन से वादा किया था जब तक खून का कतरा होगा, एक सांस होगा, ज़ियाद आपकी चौखट का आका पहरा देगा। हाथ में तलवार पकड़ी, चौखट का सहारा लिया, फिर महबूबे किबरिया की चौखट का पहरा दे रहे। फिर काफिर तीरों तलवार की बुछार करते हैं। ये 92 जख्म खा के लहू लहू होके जमीन पे गिर गए। जब गिरे तो चीख की आवाज ज़ियाद की निकली। आवाज सुन के आका खैमे से बाहर आ गए। अब मंजर क्या है, अहले सियालकोट सैयदुल कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आका की इज्जत और नमूस के लिए 92 जख्म खाने वाले ज़ियाद बिन सकन है। हबीबे किबरिया ने क्या देखा, आज मेरे प्यारे का सारा जिस्म लहू लहू है। आज तो इसकी आंखें भी जख्मी जख्मी है। महबूब ने दोनों मुबारक हाथ उठाए, ज़ियाद बिन सकन की आंखों पर रख दिए ताकि इसे सुकून मिल जाए। ज़ियाद की चीख निकली, आका आंखों को बंद न कीजिए, एक ही ख्वाहिश है शहादत पाते हुए अरब के पास जाते हुए आपके चेहरे पर नूर का दीदार तो होता रहे। मेरा रब पूछे, ज़ियाद इतना तो बता दे मुझे, तू दुनिया से किस हाल में आया है। रब्बा जब मेरी रूह प्रवास कर रही थी मेरी नजरें सैयदुल कुनैन के पुरनूर चेहरे पे थी। महबूब का दीदार करते करते शहादत पाके जन्नतों में चले गए। मैं किस किस का तज़किरा करूं। हमारा रज़ी अल्लाह ताला इसी जंगे उहद में लहू लहू है, खून से तरबतर है, आका पास से गुजरे। हमारा तेरा क्या हाल है। जख्मी हालत में जिस्म की कुव्वत को जमा किया, अपना सर सैयदुल कुनैन के कदमों पर रख दिया। अल्लाह के नबी एक ही ख्वाहिश है, आपके कदमों में मेरी जान निकल जाए। एक शायर बोला, गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। गुलिस्तां में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। निकल जाए जान तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। ये कौन है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया, मगर इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। मोहब्बतों का मेयार, अकीदतों का मेयार, ये है अंदाज। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सफर कर रहे हैं सल्लल्लाहु, दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा एक अपना अंदाज है, कभी कुरान की आयत, कभी हदीस, कभी वाक़या, कभी शेर, कभी जो इससे बात, कभी वैसे। मतलब इससे एक बंदा सारा जोर ही लाई रखे तो जनाब 10 मिनट बाद वखियां पक जांदियां ने। एंड ते की होंदा है, जदों तकरीर दी बस करदा है, चेहरे दा बुरा हाल, रंग उड़े होया, पसीनो पसीने। मैं थोड़ा जिहा स्टाइल चेंज करदा रह जाना ताकि थकावट ना होवे। तो अल्लाह अकबर या अल्लाह अकबर, मैं सैयदुल कुनैन की बात कर रहा था, हादिये कायनात की बात कर रहा था। साद बिन रबी है रज़ी अल्लाह ताला, जंगे उहद है, लहू लहू है, खून खून है, जख्मी जख्मी है। 70 के करीब तीरों तलवारों के निशानात उनके जिस्म पे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद को कहा, मैदान में जा, अगर साद बिन रबी तुझे जिंदा हालत में मिल जाए मेरा सलाम पहुंचाना। जाके पूछना, साद आका पूछ रहे तेरा क्या हाल है। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं शहीदों की लाशों से गुजरता साद बिन रबी तक पहुंच गया। मैंने क्या देखा, 70 के करीब तीरों तलवारों के निशानात जिस्म पे हैं, जिंदगी का आखिरी सांस ले रहे हैं, शहादत पाने वाले हैं। मैंने तलाश करके सैयदुल कुनैन का सलाम पहुंचाया। साद आका पूछ रहे तेरा क्या हाल है। क्या जवाब दिया, आज रब्बुल आलमीन के रास्ते में जख्मी होके मौला की जन्नत की खुशबू पा रहा हूं। ज़ैद मेरी कौम अंसार को मेरी जिंदगी का आखिरी पैगाम दे देना कि अंसारियों, अगर तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन आका तक पहुंच गए, अल्लाह के हबीब को कायनात में चोटो ज़राबादी, क़यामत के दिन तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। ये अल्फाज कह के उम्मत को बता गए, ये तुम्हारा नारा नहीं, ईमान भी है, अकीदा भी है कि हुर्मत रसूल पर जान भी।
हजरत आगे बात को लेके चलूं, अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। मोहसिन भाई इधर आ जाओ, माशाअल्लाह भी उलमा दा दीवाना परवाना। अल्लाह अकबर। जिन नौजवानों ने, हमारे भाई मोहतरम नदीम और दीगर, और जिनके नाम जानता हूँ नहीं जानता, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जिन्होंने इस जलसे के लिए चंदा दिया, इंतज़ाम किया, उन सबको मुआफ़ कर दे। तो मैं बात कर रहा था सैयदुल कौनैन की, अल्लाह के हबीब सफर कर रहे हैं, अबू कतादा आपकी सवारी के साथ चल रहे हैं। अल्लाह के महबूब को ऊँग आ गई, दाईं तरफ सर मुबारक झुक गया, अबू कतादा आगे बढ़े, सैयदुल कौनैन के सर मुबारक के नीचे अपना ये कंधा दे दिया, फिर दूसरी तरफ सर झुक गया, जाके कंधा दे दिया, हत्ता के सारी रात आका सफर करते रहे, अबू कतादा कंधा देते रहे, हत्ता के सुबह हो गई। आका नमाज फजर के लिए बेदार हुए, क्या देखा कि अबू कतादा मेरा प्यारा मेरी सवारी के साथ पैदल चल रहा है। फरमाया अबू कतादा कब चले? आका सारी रात हो गए आपको सर को कंधा देते हुए। रब की बारगाह में सैयदुल कौनैन ने हाथ उठा दिए, रब्बा मैं जमीन पे अबू कतादा से राजी हूं, तू अर्श पे राजी हो जा। सारी रात महबूब के सर को कंधा देके उम्मत को बता के ये तुम्हारा नारा नहीं, ईमान व अकीदा है, हुर्मत रसूल पर जान भी। आगे चलिए, जंगे ओहद है, वो साहब या खातून जिसका बाप मैदान में कट गया, बेटे कट गए, भाई कुर्बान हो गए। अल्लाह अकबर, क्या प्यारे थे सहाबा। अगर बदर में आ गए मैदान में, आसमान से 1000 3000 फरिश्ते आ गए, मैदान में कट गए, प्यारे हंजला को गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आ गए। अल्लाह की कसम उन्होंने वफा का हक अदा कर दिया। जब सहाबा इकराम साद बिन मुआज की शहादत के बाद उनकी मैयत लेके जा रहे थे, अर्ज करते हैं महबूब साद बिन मुआज की मैयत का वजन कम हो गया है। सैयदुल कौनैन ने फरमाया मेरे प्यारे की मैयत का वजन इसलिए कम हुआ है कि ये पैगंबर की इज्जत व नमूस पे कट गया। आसमान से फरिश्तों ने आके इसकी मैयत को कंधे दिए हुए हैं। फरमाया जब साद बिन मुआज की रूह जिस्म से परवाज कर गई, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। अल्लाज़ी तहर्रक लहुल अर्श, साद बिन मुआज की शहादत पे अल्लाह का हर शरकत में आ गया। नमाज़े जनाजा में 70,000 फरिश्ते आए। यही तो वफादार थे जिनके बारे में कहने वाले ने कहा नजर के सामने आता है। और सुनो अहले सियालकोट, नजर के सामने आता है नक्शा उन दलेरों का कि जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है, शेरों का फसाना जिंदा हो जाते हैं। उन शमशीर गिरों के जो मोहसिन थे, शरीफों के जो कातिल थे, शरीरों के, वही अल्लाह के बंदे जो जाहिद और नमाजी थे मगर राहे शहादत में मुजाहिद और गाजी थे। इमामत कौम की वक्त इबादत उनका हिस्सा था, बवक्त जंग फौजों की क़ियादत उनका हिस्सा था। क्या नमूसे रिसालत के लिए उनका किरदार। वो सहाबिया खातून, जलसे में मेरी बहनें भी आई होंगी, कहेंगी मर्दों का जिक्र किया, औरतों का जिक्र ही नहीं किया। हाँ, वो पहली खातून ही थी जिसका नाम सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिस खातून ने मोहब्बत रसूल में अपनी गर्दन का लहू दिया। हाँ, ये सहाबिया खातून जंगे उहद में जिसका बाप शहीद हो गया, बेटे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, शौहर मैदान में कट गया, शैतान ने गलत बात फैला दी, आका को शहीद कर दिया गया, मदीने में कुरान बपा हो गया। ये गुजरने वालों से पूछती है आका का क्या हाल है। किसी ने खबर दी तेरा बाप शहीद हो गया, किसी ने खबर दी तेरे बेटे शहीद हो गए, किसी ने खबर दी तेरा शौहर मैदान में कट गया। कहती है बाप का नहीं, बेटों का नहीं, भाइयों का नहीं, शौहर का नहीं, आका का बता दो क्या हाल है। और जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा, किसने कहा, जिब्राइल अमीन ने फरमाया मैं मशरक भी गया, मगरब भी गया, शुमाल भी गया, जनूब भी गया, मैंने आमना के लाल जैसा खूबसूरत बच्चा कायनात में देखा नहीं। और जिनके बारे में हसन बोले रजी अल्लाह ताला वासन मिन कलम तरकत तो आईनी, मेरी आंख ने आका जैसा खूबसूरत नहीं देखा। वह अजमल मिन कलम ताले दिन निसाऊ, हसन तेरी आंख कैसे देखे। किसी माँ ने ऐसा बच्चा कायनात में नहीं जना। खुलकता मुबर्रा मिन कुल
कुल्ले ऐबिन, अल्लाह ने महबूब को ऐबों से पाक पैदा किया। कान्ना का कद खुलकता कमा तशाऊ, आका आपको देखते हैं यूं लगता है जैसे आप कहते चले गए, अर्श वाला आपको बनाता चला गया। और जिनके बारे में अबू तालिब कहा करते थे, जब हमें जमीन पे बारिश की जरूरत होती है हम आमना के लाल के चेहरे करो आसमान की जानब करते हैं, इसका रब इसके उठे चेहरे की लाज रखे बारिश के कतरे बरसा देता है। और जिसकी सूरत दुनिया में शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, वो आका जिसका बाप शहीद है, बेटे शहीद है, भाई शहीद है, शौहर शहीद है। जब सैयदुल कौनैन के चेहरे पे नजर पड़ी, हफीज जलंधरी बोला, चली थी एक ज़ईफा जुस्तजुए हाल करने को, किसी अच्छी खबर का बढ़ के इस्तकबाल करने को। गए थे जंग में उसके बिरादर और शौहर भी, निछावर कर दिए उसने फर्जंदों के गौहर भी। मिले उन सब के रास्ते में शहादत के पैगाम उसको सुनाते ही सुनाते जा रहे थे खास आम उसको, मगर उसकी ज़बान पर एक इसमें गिरामी था, उसी का नाम नामी था जो मजलूमों का हामी था। कहाँ है वो मेरा भाई, कह रहा था पैगाम मुस्तफ़ा उन्वान है। हाँ आओ पैगाम मुस्तफ़ा पे बात कर जाऊं। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है, रब के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, क्यों वो कायनात का खालिक है। तो पैगाम मुस्तफ़ा क्या है, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किलों में नहीं पुकारना, क्योंकि पैगंबरों ने रब के अलावा किसी गैर को नहीं पुकारा। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या सदा लगा रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगा रहे हैं। ला नहीं कोई इला, इल्ला सिवाय अल्लाह के, यानी कायनात को बनाने वाला, निजाम चलाने वाला अल्लाह अकेला वादउला शरीक है, इसलिए पुकारा जाएगा। अर्श वाले को सर झुकाया जाएगा खालिक के कायनात के सामने। सैयदुल कौनैन यही पैगाम लेके आए। और लोगों इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आए। इस पैगाम से बाप टकराया तो अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की शक्ल बिज्जू की होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, रब ने इतना मकाम दिया, कुरान में एक सूरत नाज़िल की जिसका नाम सूरह इब्राहीम है। फरमाया व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहीम वफादार है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाने वाला है। सलामुन अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पे सलामती हो। तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने क़यामत तक इब्राहीम का जिक्र दुनिया में छोड़ दिया। दो बेटे दिए, एक हजरत इस्हाक, उसको भी नबी बनाया, उसके बेटे हजरत याकूब को नबी बनाया, पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल की नस्ल से रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम ये सदा ला इलाहा इल्लल्लाह की लेके उठे। अल्लाह ने मकाम क्या दिया, अपने महबूब के कल्बे अतर पे 114 सूरतें नाज़िल की। उन सूरतों में से एक सूरह नूह है। और ला इलाहा इल्लल्लाह से इनका बेटा टकराया, रब ने पानी की मौजों में गरक कर दिया। दो पैगंबरों की बीवी का कुरान में जिक्र है, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया, जहन्नम में जाएंगी। और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और प्रचार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का प्रचार सैयदना बिलाल ने किया। अल्लाह ने उनकी जेबों में जन्नत का टिकट भी डाल दिया, मकाम ये दिया, वो चलते जमीन पे हैं, जूतों के आहट की आवाज को आसमानों पे पहुंचा दिया। यही पैगाम मुस्तफ़ा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पैगाम कभी ताइफ की वादी में, ये पैगाम कभी सफा पहाड़ी पे, ये पैगाम कभी मक्का की गलियों में, ये पैगाम कभी मदीना की गलियों में। सैयदना खबाब का सूली पे लटकना, अंगारों पे लेटना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। सैयदना खबाब का अंगारों पे लेटना, सैयदना खुबैब का सूली पे लटकना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। सुमैया के टुकड़े हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। हजरात मक्का से मदीना की तरफ हिजरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। 14 बदर में कटे, अकीदत
عقیدہ توحید کے لیے 70 عہد میں کٹے عقیدہ توحید کے لیے، یہ تلوار کے وار عقیدہ توحید کے لیے، یہ لشکروں کا چلنا عقیدہ توحید کے لیے۔ ایسا لمحہ بھی آیا جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید تھے، نبی کے چچا کے ٹکڑے تھے، پیارے حنظلہ کے ٹکڑے تھے، پیارے مصعب کے ٹکڑے تھے، 70 ساتھیوں کے کٹے گلے تھے، بہتا لہو تھا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھا، کہتا ہے کیا تم میں محمد ہے؟ فرمایا میرے یارو جواب نہیں دینا، تم میں ابو بکر ہے جواب نہیں دینا، تم میں عمر ہے جواب نہیں دینا۔ پھر ابو سفیان کہتا ہے اول الحبل، آج دنیا میں حبل بلند ہو گیا، اور سنو پیغام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ سن چکے ہیں، سنو پیغام مصطفیٰ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب ابو سفیان نے کہا اول الحبل، آج حبل بلند ہو گیا، فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، محمد جو پیغام لے کے آیا ہے اللہ کی توحید کا، شرک کی منڈیوں کو ویران کرنے کا، آج اس پیغام پہ کافر نے زد لگائی ہے، جواب دو اول الحبل نہیں، اللہ اعلیٰ وجل، اللہ بلند ہے برتر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ جواب دو کافر کو، اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کام برابر ہو گیا، 70 ہمارے بدر میں مرے تھے، 70 تمہارے عہد میں کٹ گئے۔ فرمایا جو تمہارے مرے وہ بتوں کے پجاری تھے، جو ہمارے کٹے وہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والے تھے۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ ذرا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، پیغام مصطفیٰ، حضرت مولانا بشیر خاکی صاحب۔ حضرات پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دنیا میں کسی کی بندگی پوجا نہیں ہوگی، اللہ کی، اکیلے اللہ کی، کسی اور کے نام پہ دیگیں نہیں پکیں گی، صرف اللہ رب العزت کے نام پہ، کسی اور کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہوں گے، صرف اللہ رب العزت کے نام پہ ہوں گے، کسی اور کے نام پہ دودھ کی سبیلیں نہیں لگیں گی، صرف رب العالمین کے۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ وہ آقا جو نبیوں کے امام بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، جن کے دروازے پہ جبرائیل براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں پیغمبروں کا امام بنایا گیا، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، ان کا پیغام کیا ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں محمد کے نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ پھر یہ صدائیں کہ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، امام پری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ او لوگوں سنو بزرگوں کا احترام، ولیوں کا احترام سنو۔ اللہ نے قرآن میں کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم بڑے بڑے القابات دیتے ہو، کیا کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے وہ بھی بنایا ہے؟ لن یخلق ذبابا، کیا انہوں نے مکھی بھی بنائی ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں ساری دنیا کے زندہ انسان مل جائیں، اللہ نے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں سارے بال سفید نے، اللہ نے سفید کر دیتے، ساری دنیا دے زندہ انسان مل جان، انہاں دا سفید ایک وال کالا کر سکتے؟ یار جے کلف لا ہی دین گے 4 دن بعد پھر چٹا، مستقل کالا کر سکتے؟ یار جے ساری دنیا مل کے ایک سفید وال کالا چٹا نہیں کر سکتی تے 2.5 کلو دا پتر کیویں دے سکتے ہیں؟ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کی قسم ہے یہی پیغام ہے، یہی صدا ہے، یہی اعلان ہے، اسی کے لیے قربانیاں ہیں، اسی کے لیے کٹنا ہے، اسی کے لیے شہادتیں ہیں، اسی کے لیے میدانوں میں ڈٹنا ہے۔ اگر مکہ میں قربانیاں تھی لا الہ الا اللہ کے لیے، پھر میرے آقا نے عقیدہ توحید کی صدا لگائی۔ اور لوگوں پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لآلہ، انا خیرکم لآلہ، میں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے باہر نرم تے اپنی بیوی واسطے تماکو دو بھی زیادہ
गरम। खैर पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? खैरुकुम ले आलही आना खैरुकुम ले आहली। अपनी बीवी से अच्छा सलूक करो। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? जो खुद खाओ बीवी को खिलाओ, जो खुद पहनो बीवी को पहनाओ। मोहब्बत करो, प्यार करो। औरत को हुक्म है खामद की ताबेदारी कर, फर्मा बरदारी कर। मेरे आका ने फरमाया अगर इस्लाम में अल्लाह के अलावा सजदा जायज होता, औरत को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा करे। अगर दोनों खामद और बीवी एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखेंगे, अल्लाह की कसम घर जन्नत का। ये है पैगाम मुस्तफ़ा। आओ पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की मेरी उम्मत में से नहीं है। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोस्ती है। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? सालन बनाओ, शोरबा ज्यादा कर लो ताकि पड़ोसियों को हिस्सा मिल जाए। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? अफशु सलाम, लोगों सलाम आम करो। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? आते मुत्ताम, अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, जैसे इन्होंने आपके लिए चावल पकाए हैं। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? बस अफशु सलाम व आते मुत्ताम वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो और दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल लो। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, आलन व सालन मरहबा। आलम इस्लाम के अजीम सकालर हमारे कायद मोहतरम कारी मोहम्मद यकूब शेख साहब, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे कायद तशरीफ लाए हैं। उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी शेख मोहम्मद यकूब से रिश्ता क्या? कारी शेख मोहम्मद यकूब से रिश्ता क्या? अली गिलानी से रिश्ता क्या? शबीर शाह से रिश्ता क्या? आसिया अंद्राबी से रिश्ता क्या? हम अपने अजीम कायद आलम इस्लाम के बेबाक खतीब सऊदी अरब अल्लाह के रसूल के शहर से किताब और सुन्नत का इल्म सीख के आने वाले मैं अपने अजीम कायद कारी मोहम्मद यकूब शेख, उनको आलन व सालन मरहबा कहता हूँ। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और मैं तो अपने कायद के खताब के लिए आपको बिदार कर रहा था, तैयार कर रहा था। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? अफशु सलाम, और सलाम फैलाओ। अतमुत्ताम, खाना खिलाओ। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारों से सिला रहमी करो। सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, लोग सोए हों उठ के रब की इबादत करो। तदखुलुल जन्नता बेसलाम। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? इन्ना अबवाबुल जन्ना ताता ज़लाल सियू, जन्नत को रब ने तलवारों के नीचे रखा है। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? जाहिदू फी सबीलिल्लाह फ़इन्नल जिहाद फी सबीलिल्लाह तबारक व तआला बाबुम मिन अबवाबिल जन्नत। लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद, ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। पैगाम मुस्तफ़ा क्या है? मन कातल फी सबीलिल्लाह फुआकनाकतिन वाजबत लहुल जन्ना, जो ऊंटनी के दूध दोने के दरमियानी वक्फे जितना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा, रब जन्नत वाजिब कर देगा। अल्लाह की कसम, जिस पैगंबर ने उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया, गुलामों का ख्याल, यतीमों से प्यार, मिस्कीनों से प्यार, उस पैगंबर की हुर्मत और नमूस के लिए कटना ये उम्मत पे फर्ज भी है, करज भी है। और हमारे कायद ने अल्लाह की कसम कराची से खैबर तक हुर्मत रसूल के मसले पे धूम मचाई है, इस्लामी मुल्कों में पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह हमारे कायद के कायदीन की इस मेहनत को कबूल फरमाए। खत्मे नबूवत के लिए अल्लाह की कसम हम ये अज़म कर चुके हैं। मैं अपने कायद की मौजूदगी में आपसे अहद लेना चाहता हूँ, वादा लेना चाहता हूँ। क्या सैयदुल कौनैन की नमूस के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, लूटी इज्जतों, कटे गलों का बदला लेने के लिए, कश्मीर के मजलूमों की हमायत के लिए, क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? फिर मेरे नारे का जवाब दे। अली गिलानी से रिश्ता क्या? आज
50 दिन से ज़्यादा हो गए कश्मीर में कर्फ्यू है, आज उनकी खुराक बंद है, पानी बंद है, आज वो तड़प रहे हैं। उनका जुर्म ये है, वो कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली गिलानी 26 साल जेल में गुजार के कहता है मेरा अहले पाकिस्तान से ईमान का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है, कुरान का रिश्ता है। आसिया अंद्राबी लौ के पाकिस्तान का परचम लहरा रही है। हम कश्मीर के मसले पे अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के, बोलो, अफवाज पाकिस्तान के, हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। यही पैगाम आगे पहुंचाने के लिए आलम इस्लाम के अजीम सकालर कायदे मिल्लत इस्लामिया, जिन्होंने अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में तमाम मसालक के उलमा को एक स्टेज पे इकट्ठा करके एक गुलदस्ता सजाया है। अल्लाह के फजल से मेरे कायद, मैं तो अपने कायद के खिताब के लिए आपको बेदार कर रहा था, तैयार कर रहा था। खसूसी खिताब फरमाएंगे, अगर कतरे हो तो मिल जाओ, दरिया नजर आए, अगर कतरे हो तो मिल जाओ, दरिया नजर आए, अगर जर्रे हो तो जम जाओ, सहरा नजर आए, हर नक्श तुम्हारा जमता नजर आए, हर बोल तुम्हारा बाला नजर आए। अल्लाह की कसम, ये उलमा सरमाया उम्मत है जो खत्म नबूवत के लिए उम्मत मुस्लिमा को तैयार करते हैं। और मैं अपने कायद के खिताब से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं, आपके तैयार करना चाहता हूं। वो है ऐवाने फलक बोस के दरबानों में, मैं हूं खत्म नबूवत के निगे पानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दे, तार जितने भी बकाया है गिरे पानों में। शातमे सैयदुल कौनैन का खून जायज है। इस पे हमारे उलमा ने कलम उठाया। सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल, और गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है। हमारे कायद मोहतरम कारी मोहम्मद यकूब शेख साहब, इनकी शानदार जानदार किताब है इस मौजू पे कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, उसका भी मुताला करें। वो हैं ऐवाने फलक बोस के दरबानों में, मैं हूँ खत्मे नबूवत के निगहबानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दें, तार जितने भी बकाया हैं गिरे बानों में। शातमे सैयदुल कौनैन का खून जायज है। आज तक जज्बा है मुसलमानों में, बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करें। मैं हूँ दरबार रिसालत के सना खानों में, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इलाह के बाद दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ। मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं तो अपने कायद और आलम इस्लाम के अजीम सकालर, इनके खिताब के लिए आपको तैयार कर रहा था। ईमान अफरोज़ सियालकोट की धरती पे खिताब फरमाएंगे, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।